ভাৰতে কেতিয়া বিশ্বকাপ খেলিব 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে এইটো হয় এটা FAQ অৰ্থাৎ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্কড কুৱেশ্যন। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে H8 দ্য ফুটবল ফৰৱাৰ্ড শ্ব'। ভাৰতত 140 কোটি মানুহ আছে, তথাপি বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা 11জন খেলুৱৈ ওলোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 1.5 লাখ মানুহ থকা কুৰাছাৱে বিশ্বকাপ কেনেকৈ খেলিবলৈ পালে? এনে প্ৰশ্ন এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া বা টিভি ষ্টুডিঅ'ত আমি শুনা পাওঁ। এতিয়া যদি মই সোধোঁ, আপোনালোকে জানেনে 2030 চনৰ বিশ্বকাপত খেলাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন ৰাউণ্ড কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব? 2026ত আমি নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া তাৰ আলোচনা কৰি লাভ নাই। লাভ আছে 2030ৰ কথা কৈ। 2027ৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এছিয়াৰ দেশসমূহৰ মাজত আৰম্ভ হ'ব ফিফা বিশ্বকাপৰ অৰ্হতা নিৰ্ণায়ক খেলসমূহ। কিন্তু আমি কিমানে এই বিষয়ে কথা পাতিছোঁ? আচলতে আমি 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই প্ৰশ্ন কৰাতকৈ দৈনিক কৰিলেহে বিশ্বকাপৰ সপোন দেখাটো যুক্তিসংগত হ'ব। এনে নহয় যে দৈনিক এই সপোন দেখা মানুহ ভাৰতত নাই, আছে। আজি তেনে এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ মাজত আছে যাৰ সপোন 2034 চনত ভাৰতক বিশ্বকাপ ফুটবললৈ লৈ যোৱা, যি নিজৰ ফুটবল একাডেমীত গঠন কৰিছে 2034 চনৰ বিশ্বকাপ বেটছ। অলপতে তেওঁৰ মিনাৰ্ভা একাডেমীৰ অনূৰ্ধ্ব-15 দলে স্পেইনত বিশ্ববিখ্যাত ক্লাব লিভাৰপুল FCক 6-0 গলত পৰাস্ত কৰি এক আশাব্যঞ্জক ভৱিষ্যতৰ উমান দিছে। ভাৰতীয় ফুটবল জগতত চিধা কথা কোৱা, ভাৰতীয় ফুটবলকে জীৱন হিচাপে লোৱা, বহুতৰে বাবে ভাৰতীয় ফুটবলৰ আশা আৰু কিছুমানৰ বাবে বিতৰ্কিত এই ব্যক্তিজন হৈছে ৰঞ্জিত বাজাজ। ৰঞ্জিত বাজাজৰ সৈতে আমি কথা পাতিম ভাৰতীয় ফুটবল, তেওঁৰ সপোন আৰু লগতে বিশ্বকাপ ফুটবলৰ বিষয়েও। Welcome Mr. Ranjit Bajaj to our show. My show's name is Football Forward and it will be a permanent show. It's not only about World Cup football. So first of all, congratulations for your historic win against Liverpool FC. Everybody knows it. And as well as the promotion for Delhi FC to IFL. So those who are not aware what is IFL, let me explain you. This is the second division of Indian football, men's football, and it is rebranded. Earlier it was known as I-League. So congratulations again on behalf of my channel, Headline 8. Okay. So first of all, we'll talk about Indian football before going to the World Cup. So World Cup football is around the corner, so we'll speak about it. But first, the frequently asked questions every 4 years. When and how Indian football will qualify for World Cup, men or women? First of all, sir, said thank you so much for having me. And I really hope your channel goes and becomes the best in the country, and I'll keep supporting it. Thank you so But much. let's come to the question you asked. Now, until and unless this question is asked not every 4 years, but every single day, till then we will not qualify. Because we ask this question once in every 4 years, that is why we will not qualify. That would Till have the time been we my don't ask answer. this question, yeah, हर रोज पूछना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हर रोज पूछना पड़ेगा फेडरेशन से, गवर्नमेंट से, ये क्या है कि हम क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहे? क्योंकि हमको 4 साल में एक बार याद आती है, इसीलिए हम क्वालिफाई नहीं होंगे। Short and crisp. So it's a very short and crisp answer. The next thing is everybody knows about your 2034 dream. You're doing it, and you are doing at your एक base. ड्रीम ऐड हो गया उसमें Oh, उसमें sorry. एक ड्रीम ऐड हो गया। 2034 वर्ल्ड कप है, वो क्वालिफिकेशन है। हाँ 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 2036 ओलंपिक्स में मेडल है Okay. In India, in football. in football, but in India because the Olympics is happening in India हाँ हाँ and it's the under 23 team. हम्म So that gives me more कि चलो, क्योंकि उस वाली टीम में 34 वाली में मेरे बच्चे भी होंगे, the best of the new generation will be there, but there will be also the people who will be there for the last 10-15 years. So qualification is a very big thing in 2034 because we still have the old baggage with us. Whereas in the under 23 team, मतलब कि क्या हो गया, जो 20-21 साल के होंगे 2036 में, और इस टाइम पे हमारा चल रहा है 2026, 10 साल पहले, they will be all who will be 11 and 12 today. Yes. Okay. So अगर 11 and 12 वाले हैं तो इस टाइम मेरा फोकस 11-12 वाले साल बच्चों के लिए होना चाहिए। और इसीलिए जो हमारा बैच जा रहा है अगले हम महीने के बाद, within a month, to the Gothia Youth World Cup, and then after that Helsinki Cup, and उसके बाद अगले साल Mick Cup again, will be nobody else other than my 11 and 12 year olds, because मेरे को अपना फोकस
बहुत स्पेसिफिक करना है कि हमको इसके लिए क्वालिफाई करना है, उसके लिए ये वाले बच्चे किस साल के होंगे और उस टाइम पे उसकी ट्रेनिंग अब शुरू करनी है. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. बेस्ट विशेस एंड हम सभी चाहते हैं कि आप सिर्फ आप ही नहीं, फुटबॉल जितने भी स्टेक होल्डर्स है, क्लब्स है, भाई अकेडमीज हम सब का नो, है। जितने भी फुटबॉल फैंस हैं उनमें से एक, दे माइट डिसएग्री ऑन एवरीथिंग, एक चीज, मगर हम सबका एक ही कॉमन ड्रीम है यार. देखो ड्रीम क्या है हम सबका, क्या किसी फैन से पूछो क्या ड्रीम है इन वर्ल्ड कप, सारों का एक ड्रीम है. सो 1.5 बिलियन पीपल हैव द सेम ड्रीम्स, नॉट माय ड्रीम. So next is how are you running your academy? कैसे चलाते हो आप? बहुत पैसा लगता है, सब जानते हैं. भाई इट्स अ वेरी बिग स्ट्रगल. जो मैं कह रहा था क्वेश्चन हर रोज पूछना चाहिए वर्ल्ड कप कैसे पहुंचना है, ये हर रोज की स्ट्रगल है मेरी कि मेरे को पैसे कैसे रेज करने हैं. एंड द सेम थिंग, हम वर्ल्ड कप तब तक नहीं पहुंचेंगे अगर मेरे जैसों को भी हर रोज ये स्ट्रगल करनी पड़े कि मेरे को पैसा कैसे रेज करना है. बिकॉज जो बंदा प्रॉफिट के लिए नहीं अपने देश के लिए कर रहा है एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू डू दिस, पीपल और द गवर्नमेंट और समबडी हैज टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो मॉडल होता ना, अगर मैं हर जगह पे कमर्शियल एकेडमी जाके खोल रहा होता विद द नेम आई हैव, एवरी एकेडमी विल सक्सीड कमर्शियल मॉडल पे भी. बट यू नो, सारी दुनिया को पता है मैं क्यों कर रहा हूँ. और ऐसे बंदे को भी अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, होएगा कैसे? मेरे जैसे और कोई पैदा नहीं होएगा. फिर अगर वो देखेंगे हाँ यार ये काम कर रहा है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो देन मोर पीपल विल गेट इनटू इट. मेरे रिजल्ट्स के बाद, मेरे सारे के बाद तब भी सपोर्ट नहीं मिलेगी मुझे, तो कौन आएगा इसमें? कोई नहीं आएगा ना. इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे को, पहले कहते थे कि हमारे को ये, अब आप कहते हैं हमारे को 100 मिनरवा या 100 रंजीत बजाज चाहिए. कैसे आएंगे? सो सी यू, no, it's not only me, it's about everyone. Why are there no academies in India? Because nobody supports academies. No sponsor, no government, no state federations. Everybody supports clubs. ऊपर से देखो वेस्ट बंगाल क्या देता है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान सबको 2-2 करोड़ रुपए देता है साल के. मणिपुर, नेरोका एंड ट्राओ एंड जो क्लासा भी आई थी, वो दूसरी वाली जो पता नहीं कौन सी टीम थी जो नेरोका, एक सॉरी मणिपुर से आई थी, तो उनको देता है डिपेंडिंग ऑन तुम क्या खेल रहे हो, 1 करोड़ या 50 लाख 25 लाख फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन के. गोवा यूज्ड टू गिव 2 करोड़ टू एवरी आई लीग टीम. जम्मू कश्मीर gives to Real Kashmir every year 1 or 2 crore, 2 crore rupees. But क्यों देते हैं इनको? क्यों? Why are they giving it to these clubs? I want them to give it to academies ना. क्लब्स पहुंच गए, अगर वो पहुंच गए, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे से मांगेंगे, अगर तुम नहीं दोगे वो मरेंगे नहीं, और अगर मरेंगे देन दे डोंट डिजर्व टू लिव. बिकॉज दिस इज सीनियर फुटबॉल. तुमने अगली जनरेशन के लिए क्या किया है? The governments and everyone should be working for the future and the not the present, because the present is the past. खत्म हो गया प्रेजेंट, वो आज के बाद कभी नहीं आएगा, तो खत्म होगी ना वो बात. और तुम आज वाले के लिए चेंज करोगे, पैसे दोगे, तो कितना चेंज कर लोगे उसको? आज इतना सा है, छोटा सा, वेयर एज फ्यूचर इतना बड़ा है. तो एवरीबडी इज लुकिंग एट इट रॉन्ग इन दिस कंट्री. So let's come to the World Cup now, because this is now the main focus. So how will be the last dance of Messi and Ronaldo look like? I think the last dance will be a great dance. And you know, if things go, results go right, there is a chance that Argentina will meet Portugal. And every football fan in the world, doesn't matter, even if you're a Messi or Ronaldo fan, yes, then. But otherwise, even if you're not, the only match they want, कि ये होना चाहिए, should be this and this, because दोनों का लास्ट है. तो दोनों will be जो ऐसे जा रहे होंगे कि दुनिया उनको याद क्या करेगी, इस मैच पे याद करेगी. ये मैच सबसे रिप्लेड मैच होएगा. एंड I would say that कि ये मैच की जो व्यूअरशिप होगी, it will be equal to the World Cup final. देख लेना, चाहे ये प्री क्वार्टर स्टेज होएगा, बनी क्वार्टर या प्री क्वार्टर पे बन रहे हैं, क्वार्टर में वो ना देखे ये मैच तो सारे देखेंगे. तो that's a great thing. But more than that, I'm talking about के क्या लगता है जीतेगा कौन?
सिद्धार्थ, इस बिफोर यू आस्क मी, हम्म, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, अपनी प्रेडिक्शन दे। कहाँ पे? वर्ल्ड मेसी कप वर्सेस रोनाल्डो? ना 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 ना, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप वो लास्ट में आएंगे, लास्ट में आएंगे, बाद में। ठीक है। योर टॉप 4 टीम्स हु कैन प्ले सेमीफाइनल? स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, and see, I'll go for five. Why? Because anything can happen. हम्म And why? Because I want to take the team's name in, हम्म even though people will not think there's, a chance me in Norway. Because They are the people are underdogs. really underestimating Norway. No, no, they are really underdogs Because this वो time. सिर्फ हालैंड को देखते हैं, उनके बाकी हम्म स्ट्राइकर देख लो, तीनों स्ट्राइकर टॉप लीग्स में हम्म खेलते हैं, और क्या सीजन हुआ है। एंड ऑफ द हम्म डे इज अबाउट गोल्स। और yeah ये तो है नहीं कि कोई भी ऐसी टीम है। हम्म इराक ने भी सामने एक गोल कर दिया स्पेन के अगेंस्ट फ्रेंडली में, तो बॉल तो पहुंचती है स्ट्राइकर के पास। हम्म तो तुम अगर तीन के वर्ल्ड के तीन बेस्ट स्ट्राइकर तुमने आगे खिलाए हुए, उनके पास बॉल हम्म पहुंच रही है, चांसेस ऑफ गोल्स हैपनिंग आर मोर। सिंपल लॉजिक। yeah सो आई वुड रियली गो फॉर नॉर्वे। बट जो डार्क हॉर्सेस हैं, या अगर हु आई वुड सी वांटिंग टू डू वेल, हु आई वुड नॉट वांटिंग टू सी डू वेल, आई मीन जो हमारे जापान, आई वुड yeah वांट जापान टू बी देयर because I think Japan has a great chance. So people will not understand. Japan and Norway are my two dark horses of this World Cup, and हम्म nobody will predict it. yeah you're right, you're right. रंजित, तो हम आते हैं कि यंग टैलेंट्स, वी ऑल नो दैट लामीन यमाल विल बी देयर बट ही इज नॉट फुली फिट येट। और कौन कौन ऐसा मतलब टैलेंट आपके सामने है जो वर्ल्ड कप में टहलका मचा सकता है? हु आर दिस गाइज? So Lamine Yamal's teammate, जो उसी के उम्र का है या उससे एक हम्म साल उसी की उम्र का, मैं ख्याल, हम्म अम, क्या नाम, पेड्री। तो then you have, I'm going to be really looking at Saprit Singh, because अपना इंडियन है, and he's, हम्म see, बाकी जो सारे हैं ना, जो they हम्म are four Indians playing in different या Indian blood, playing in different teams. जो बाकी तीन है, one playing for Congo, one playing for Australia, no, actually two. So they are actually, being born and brought up there, and उनके parents भी वहीं पे हैं, and they just Indian descent because grandparents से blood same है। Whereas दो लड़के जो हैं, एक जो कतार से लड़का है, कतार से खेल रहा है, जो हमारा, he's from Kerala, born in Kerala, and Saprit Singh, his father left this generation and born there, but born here, Saprit Singh, but went very early. बिकॉज वो मेरे लिए प्रूफ होता है कि हमारे खून में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर हमारा खून बाहर जाके ट्रेनिंग लेके वो पहुंच सकता है, तो इसका मतलब हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, नॉट इन द खून, यू नो। सो मेरे लिए वो प्रूफ है। सो आई रियली वांट टू फॉलो दीज टू बॉयज वेरी वेल, इवन दो आई नो द कतार बॉय विल नॉट गेट सो मच ऑफ गेम टाइम बिकॉज ही इज जस्ट मेड द टीम। बट सप्रीत सिंह प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड दे लॉस्ट 1-0 टू इंग्लैंड इन द फ्रेंडलीज। तो इराक ने स्पेन के साथ ड्रॉ कर लिया 1-1, एंड यू हैड टीम्स लाइक अल्जीरिया बीटिंग हॉलैंड। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स। सो इसमें आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट कि ये वाला प्लेयर को देखो, मैं तो अपने इंडियन को देख रहा हूँ इसीलिए। बट क्यों? क्योंकि अपसेट होंगे और हमारे को बहुत बड़े बड़े स्टार मिलेंगे विच द वर्ल्ड इज नॉट सीन। वाई? बिकॉज पहले ना फुटबॉल का डिफरेंस ऐसा था कि ब्राजील और अर्जेंटीना और ये हमारे को भी कुछ प्रेडिक्ट कि ये दोनों जाएंगे ग्रुप से बाहर, ये भी जाएंगे ग्रुप से बाहर। एंड वी न्यू कि हमारे को एनी इंडियन, एनी फुटबॉल फैन कुड प्रेडिक्ट अराउंड 80% ऑफ द क्वार्टर फाइनलिस्ट। ठीक है, दे माइट गेट 1 or 2 रॉन्ग जो हो जाए, बट 6 तो पता होते थे कि ये जाएंगे, उनमें से 8 में से 6 जाते जाते थे। अब वो नहीं है। नाउ यू आर गोइंग टू हैव वेरी इक्वल मैचेस। व्हाई? बिकॉज द टीम्स नाउ you see that जो low block खेलती हैं and they only play on counter, they are doing very well in the leagues all over the world. Coaches like that, for example, Jose Mourinho हो गया, okay, and all these coaches हो गए, they play very well. And then Arsenal देख लो इस बारी, totally defensive setup से they won it. So
the weaker teams will be, I think, going on set pieces. तो मैं तो वर्ल्ड कप इसलिए देखूंगा कि मेरे को नए सेट पीस मिलेंगे up to try with my team. But like I said, नॉर्वे के जो जितने तीनों स्ट्राइकर हैं फ्रॉम इवन गोयकारिस एंड देन आसनबॉय देन ऑब्वियसली हालांड एंड उसके साथ एक और जो आई थिंक स्पेनिश लीग में जो टॉप स्कोरर चल रहा है, ही इज आल्सो फ्रॉम नॉर्वे. Then the two midfielders who are from Portugal, again, why will I talk about them? That's the strongest midfield. वो दोनों लड़के जो हैं 5'8" and 5'9" के हैं. With these kind of people, and then I said the Japan team. Why? Because I am looking for proof for my project कि हमारे को 6 फुट चेंज ना भी होए, हम तब भी we can do well, like Japan and Portugal. ठीक है. और अगर तुम मेसी को देख लो यार, तुम मैराडोना को देख लो यार, तुम यूसेबियो को देख लो, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर आए हैं वो कोई लंबा चौड़े नहीं होते हैं. ठीक है. सो वी शुड थिंक दैट वी कांट रीच देयर बिकॉज ऑफ आवर साइज. तो हमारे जीन्स में साइज की प्रॉब्लम जो है, साइज प्रॉब्लम मतलब कंपेयर टू अफ्रीकन्स और सम नॉर्वेजियंस एंड ऑल दोस सारे, तो वी हैव टू टेक इट as a positive and start supporting countries which look like us, not countries which don't look like us at all and we can never imitate them. तो इसीलिए मेरा जो काम है कि सिर्फ as a, especially as a, not only as a owner but as a coach, how I can use this World Cup to make my country believe that we can also get there. Okay. So let's be honest now and say, whom do you want to lift the trophy? India. Honest, We will be lifting the trophy as Argentines or Brazilians. ये बोल के इस वर्ल्ड कप में who do you want lifting the trophy? Yeah. You said who do you want lifting the trophy? Then I want India. Okay, so I want Japan to lift the trophy. Yeah. Okay, That will- I want Japan. So if I'm saying जो मेरे dark horses है Norway and Norway के लिए, because I can see as a football brain they can do well. ठीक है, but why Japan? Because हमारी एशियन कंट्री है और हमारी एशियन कंट्री ने कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है. और अगर Chances जापान जीत गया तो सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा पूरा. Everything will change. बिल्कुल. Why? Because you to understand, Asians will start believing, Koreans will start believing, South Koreans, North Koreans, everybody will think कि हम कर सकते हैं. उसके साथ then the same thing, the number of Indonesians and Thailand people who play in the Japanese league, they will start thinking यार ये तो हमारे साथ खेलते हैं, we can do it, you know. So you have to see that it's a cascade effect that will go on to that federation. That entire AFC will start growing and be taken seriously, because अभी तो एशिया को, it's not only India, Asians को कोई seriously लेता नहीं है. क्यों नहीं लेता? Because हम Asian teams have never done well. Only once they reached the semi-final, that was in the South 2002 World Cup with South Korea and Japan. They were hosting it. But I have seen in the last 3 World Cups, Japan has been very, very unlucky. पिछले वर्ल्ड कप में भी, उससे पिछले में भी, या पेनल्टीज में हारे हैं, लास्ट मिनट में हारे हैं, या टोटली ऑपोजिट मैच में हार गए हैं जहां पे they should have won. So they have been very unlucky and they were very good. See, once you reach the quarter-final stages, knockouts, I would say कि luck भी बहुत ज्यादा होता है, because it has to be your day. जो शॉट आपके अंदर जाने हैं वो बाहर चले जाते हैं by 1 inch. ठीक है. And then the other team's goalkeeper has the match of his life. And you are just shooting, और सालों को एक चांस मिलता है, वो कर देते हैं. And that's why football is a beautiful game. It's not that you can predict anything. So I want Japan to lift the trophy. And I'm totally rooting for Japan. But my brain says, my football brain says, it's going to be Spain. Let's come to India again, last time. Okay. Are you hearing me? Yeah. So, will Ranjit Bajaj run for AIFF president someday? Because I often see people, commenting in various posts of you or others. उनको बना दो. I have just seen that there have been, अभी हमारा ना इंडिया में एक जनरेशन Z का नया चीज शुरू हुआ है, कॉकरोच फुटबॉल. कॉकरोच जनता पार्टी है ना.
अब एक ऑनलाइन मैंने देखा 4, मेरे को लोग सोचते हैं कि मैंने किया, बट 4 पेज बने हैं। एक कॉकरोच फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक कॉकरोच फुटबॉल जनता पार्टी, एक फुटबॉल जनता पार्टी, एक फुटबॉल जनता पार्टी 1। Okay, so there are 4 new movements and all have the same thing कि मेरे को president बनाना है. But understand, see, I wish it was an election जहाँ पे football fans could vote. See, when you go to, अब आपने KBC देखा है तूने कभी? कौन बनेगा ना, हाँ, तो कौन बनेगा करोड़पति में, तो आपको 4-5 वो जो 4 ऑप्शंस मिलती है लाइफ लाइन्स, उनमें से एक लाइफ लाइन है आस्क द क्राउड या आस्क द पब्लिक, ठीक है। और जब तुम वो देखते हो, जब पब्लिक आंसर करती है फोन या मीडिया, जो वहां क्राउड बैठा होता है, तो वो सारा क्राउड कोई जीनियस नहीं है। देखे ना कैसे लड़के बैठे हो, हमारे नॉर्मल बंदे बैठे होते हैं, जो बाहर फिर रहा होता है रोड पे, उसको उठा उठा के अंदर ले आते हैं। तो इट्स नॉट कि वो सिलेक्शन हुई होती है, आईआईटी से आए होते हैं ना, नॉर्मल बंदे बैठे हैं। बट इवन द नॉर्मल पब्लिक गेट्स ऑलवेज 80 to 85% के ऊपर स्कोर ऑन द राइट आंसर। दे हैव टिल, कैन यू बिलीव, द पब्लिक टिल टुडे, general public has never been wrong ever. That is the power of collective brains. So अगर फुटबॉल फैंस कर रहे होते तो गलत ना होते, एंड आई वुड हैव बीन प्रेसिडेंट गारंटीड। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है वो होते हैं स्टेट्स, और स्टेट्स में जितने भी बंदे अभी प्रेसिडेंट हैं और या जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। दे ऑल ब्लडी करप्ट, एंड प्रॉब्लम उनको यही है कि मैं मुंह पे बोलता हूँ आके ये उनके कि तुम करप्ट हो और तुमने फुटबॉल के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। एंड वी आर हियर, जैसे मैं बोल रहा हूं, हमारे खून में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सब ये है। जब तक ये नहीं निकलेंगे, सपोज रंजीत बजाज, मिनरवा ने वर्ल्ड कप थोड़ा खेलना है, मैं ड्रीम बना लूं वर्ल्ड कप 2034 का, मैं इनको बेस्ट प्लेयर ला के दूं और वो सिलेक्ट ही ना करें इंडिया में, अपने चाचे मामे ताए के बच्चे ले जाए, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता इसमें। दैट इज वाई दीज गाइज हैव टू गो. So hopefully they go, and see, if there's no point, because if I have to win an election against them, it's very easy doing it. All I have to do is promise them, ठीक है, I'll help you also, जैसे सारे करते हैं। फिर वो जो मुझे वजह से अभी सुदेवा वाले को, जो प्रेसिडेंट है दिल्ली का, उसको भेज दिया हेड ऑफ फेडरेशन अंडर 17 का, जब हमें AFC गए थे। तो वहां पे जाके इसने जाने से पहले, वो रंजीत बजाज ने कोशिश करा था, जाने से पहले वो मोटिवेशन स्पीच दे रहा था, और फिर जाने से पहले बोला था कि वी विल मेक हिस्ट्री, वी विल डू दिस। उसको भेज दिया वहां पे, फिर ऐसे करके किसी और को भेज दिया फुटसल के साथ, किसी और को भेज दिया वहां पे। जब मुझे भेजा उन्होंने फुटसल, बिकॉज आई वाज फाइटिंग फॉर फुटसल अ लॉट, सो आई सेड आई वांट, मैंने उनको फोर्स करके एंट्री करवाई। सो दे सेड ओके यू गो, दिस इज जस्ट राइट इन द बिगिनिंग ऑफ कल्याण चौबे, बट आई सेड आई विल गो ओनली इन वन कंडीशन, आई विल पे फॉर माई टिकट। कहते नहीं, वो तो AFC देगा, वो AFC का मैं आई डोंट केयर, मैं अपने पैसों से जाऊंगा, और अब वहां पे आई एम द टीम हेड, बट मैं उसी होटल में रह के अपने पैसों से होटल लूंगा, तुमने नहीं मेरे लिए 1 रुपया देना। क्यों? बिकॉज मनी फॉर मी should never be spent. That money can be spent better on kids. Now imagine if those people start thinking like that. और ये मैंने पैसे दिया, ठीक है, I paid for the whole thing myself, my trip, even though I was with the Indian team as the official thing. बाकी सारे ऐसे बांटते हैं एज फ्रीबीज। लाइक हमारे अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी किसी कोच की, जो कोच लगा हुआ है उसने कभी जिंदगी में किसी क्लब को कोच ही नहीं किया, बट इंडियन टीम का असिस्टेंट कोच है, चाहे जो मर्जी हेड कोच आ जाए, से असिस्टेंट कोच सेम है। हमारे जो इंडियंस को कभी मौका ही नहीं मिलता है। सो दिस इज ऑल बुलशिट। सो अंटिल एंड अनलेस दीस गाइस एट द टॉप चेंज, एंड देन यू हैव पीपल हु रियली लव फुटबॉल इन एवरी स्टेट, आई डोंट माइंड देन डूइंग इट। अभी आने का फायदा ही नहीं है, because now I'll become part of the system. If I'm part of the system, I'm like them. I want to change the system from outside. When I change these people and I see that this is good, then me kya? Anyone who loves football can come and do a better job than them, यार। I am not kidding. मैं मेरा जो favorite, very close to me as my family is my dog. His name is Luka, after Luka Modric. उसको अगर हम प्रेसिडेंट बना दे कल्याण चौबे की जगह, वो भी बेटर काम करेगा, ठीक है ना? So there's no big goal. So I would love to be, but though like those 4 movements, I'm supporting those movements because they are listing out what Kalyan Chaubey has done. Right now, yesterday we have come to know I'm on 139. When I say I means India, hum, too, you also. We are 139.
139 bhai. There's a country which has qualified. जो island है वो. Word, Cape Word. Is Curaçao, sorry. 61? 61 rank. 50,000 बंदे हैं उनके आइलैंड में यार. 50,000. So how then when they say 1.5 billion people, we are not 1.5 billion people. It's only where football is there, and football is there only where the football support is there. There's no football other than only in Calcutta and surrounding areas. Okay, and other than in places like Kolhapur or in Maharashtra and Mumbai. That's it. पुणे 3 सिटी खत्म हो गई. उसके बाद कहाँ आ गए? उसके बाद गोवा आ गए. इतना सा स्टेट है. मिजोरम इतना सा स्टेट. मणिपुर इतना सा स्टेट. पंजाब इतना सा स्टेट. और कहाँ है? हाउ इज इट 1.4 बिलियन पीपल? 10 करोड़ की पॉपुलेशन है इन सारे स्टेट्स की जो बात की है मैंने. आई एम टॉकिंग अबाउट द पहले से फुटबॉल जहां से हमारे नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स आ रहे हैं. सो अगर फुटबॉल बाकी जगह पहुंचेगा, ये नहीं है कि फुटबॉलर नहीं है वहां पे. फुटबॉलर हैं. अगर तुम वहां पे जगह दोगे, उनको प्लेटफॉर्म दोगे, तो वो भी बड़े होंगे. नहीं तो क्या करेंगे? दे विल शिफ्ट टू अदर स्पोर्ट्स लाइक दे हैव, लाइक धोनी. धोनी गोलकीपर था बट झारखंड से था बेचारा. झारखंड में कुछ नहीं था तो क्या हुआ? चलो क्रिकेट में चला गया वहां पे खेलने. तो उसके कोच ने तो क्या करेगा? सर मैं गोलकीपर था. तो क्या था? विकेट कीपर बन जाओ. तो उसको विकेट कीपर इसीलिए बना. तो वी हैव लॉस्ट, यू नो, वी मे हैव ऑलरेडी लॉस्ट आर मेसी और आर रोनाल्डो टू सम अदर स्पोर्ट. Very good for that sport, but for us. So we need to change at the top. And that is why the first thing is we have to force the government to get these guys out and make sure the real people come in who can actually do something for football. जिनकी life, जिन्होंने अपनी life पहले devote की, like me, I've devoted my life to football, and not like me, there are a lot of other people who've devoted their life to football. Okay? तो उनका track record देखो कि इसने football से लिया है कि इसको दिया है. जो लोग देते हैं फुटबॉल को ना, उनको लिया करो. जो लेते हैं फुटबॉल से, उनको ना रखा करो. अब जितने भी हमारे फेडरेशन में सारे लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है. सो होपफुली वन डे, बट राइट नाउ थिंग्स डोंट लुक गुड. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द सिस्टम एंड इट्स सो रॉटन. Yeah. So I understand everything from your perspective. So thank you so much, Ranjit, for your time. And I It's wish, been such a pleasure, and I really hope you take off from here and really kick ass. yeah, and I wish all the best to you and your staff and your team for all the future ventures. And really hope that one day we'll be talking about India's prospect in the World Cup, and we'll be talking about how India will go against top teams in the world. And we are all living for that day, I guess. All of us, and I really hope your dream, my dream, all of our dreams comes true very soon. Billion dream, yeah. Thank So you, thank my you so brother. much again. Thank you again. Thank you so much.